my topic this morning और आज के सुबह मेरा शीर्षक है is the reverence of God. वो है परमेश्वर की श्रद्धा, The reverence of God. परमेश्वर का सम्मान। See, the reverence of God is one of the most fundamental topics about the Christian faith. और वे एक मसीह विश्वासी के लिए परमेश्वर का जो सम्मान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। It is the foundation on which the Christian walk is based. और ये मसीह जीवन का पाया है। Now, when we walk with God, when we come to God, it is expected that we show honor, we show reverence to Him. और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसमें हम बने रहते हैं, तो इसका मायना ये है कि हम परमेश्वर के सम्मान को करें। The Bible uses the word reverence interchangeably. और बाइबल में जो सम्मान शब्द है ये कई रीति से इस्तेमाल किया गया In है। some places the Bible says reverence. और कुछ स्थानों में कहा गया है सम्मान। In some places the Bible says honor. और कहीं पर वहाँ पे कहा गया है श्रद्धा या In सम्मान। some places the Bible says fear. और कहीं पर डर या भय भी बताया But गया the है। fear that is being referred to in this scripture is not the fear of man, और ये जो वचन में हम देखते हैं, जो भय के बारे में हम देखते हैं, ये मनुष्य का भय नहीं, but is reverential fear towards God. परंतु ये सम्मान का भय जो हम परमेश्वर की ओर रखते हैं। In other words, the Bible is telling us that we need to have a deep sense of respect towards God. और दूसरे शब्दों में बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर का गहरा सम्मान करना चाहिए। As children of God, we are called not only to believe in God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें इसीलिए नहीं बुलाया कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। we are called not only to walk with God, हमें केवल उसके साथ चलने के लिए नहीं बुलाया। we are not only called to believe that God is your Father, और हमें केवल इस बात पे भरोसा करने के लिए नहीं बुलाया कि परमेश्वर हमारा पिता है, but we are also called to show Him reverence with everything that we do with our life. और परंतु हमें उस चीजों के लिए बुलाया गया है कि अपने जीवन में हम जो कुछ करें उसमें हम परमेश्वर का See, I सम्मान want your करें। attention this morning. और मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान मेरी ओर हो। I want your deep attention this morning. आप गहरे ध्यान से मेरी ओर आप ध्यान लगाएं। Because what I'm teaching this morning is something that is often overlooked in our churches. क्योंकि जो आज की सुबह मैं सिखा रहा हूँ हमारी कलीसिया में जो है इसको अनदेखा किया जाता है। We become so accustomed to God's presence that we've forgotten what reverence towards Him looks like. और हम परमेश्वर की उपस्थिति के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उसका सम्मान क्या है वो भूल जाते हैं। We walk into church expecting that it's a good time. और हम कलीसिया में आते हैं कि सोचते हैं कि ये अच्छा समय है। But in this place is the creator of the universe. परंतु इस स्थान में जो है विश्व का रचने वाला है। And when you come into His presence, you are expected to treat Him with honor. और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं तो आपको उसे सम्मान देना है। A lot of times we forget that God is not only our Father, but He is also our Lord. और कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता नहीं, वो हमारा प्रभु भी है। We are called to believe in Him as our Father because Jesus said that now we refer to Him as Father. और हमें बुलाया गया है उसे पिता मानने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा है कि अब हम प्रभु को अपने पिता के रूप में देखते हैं। In the book of Romans, the apostle Paul says that now we call Him Abba, our Father. और रोमियो की किताब में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अब हम प्रभु को अब्बा पिता बुलाते हैं। But we are also called to show Him reverence with the way we live our life. परंतु हमें इसीलिए भी बुलाया गया कि जिस रीति से हम जीवन जीते हैं उसे हम परमेश्वर को सम्मान दें। We are called to show Him reverence with the way we walk. और जिस रीति से हम चलते हैं उसमें भी हम परमेश्वर का सम्मान करें। We are called to show Him reverence with the very ministry that He has blessed us with. और जिस सेवकाई जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके द्वारा भी हम परमेश्वर का सम्मान करें। Even in our worship, the Bible expects us to be reverent towards God. और हमारी आराधना में भी बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर का सम्मान करें। So what does this word mean? तो इस शब्द का अर्थ क्या है? It means showing great respect. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की और आप महान सम्मान दें। It means literally, the Merriam-Webster dictionary uses the word great respect, a deep sense of respect. और गहरा सम्मान इसका अर्थ ये होता है। I believe that this aptly describes the way man should respond to an all-powerful God with deep respect. और मैं विश्वास करता हूँ कि मनुष्य को परमेश्वर जो है वो गहरे सम्मान से उसकी ओर देखना चाहिए। You know what happens? और क्या होता है? We walk with God. हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। God blesses us. परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। God provides for our needs. वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। And over time, God becomes a genie. और समय चलते हम परमेश्वर को जो जीनी बना देते हैं। Where you want something, let's run to God. और जब कभी हमें कुछ चाहिए तो हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। We take God's presence for granted. परमेश्वर की उपस्थिति को हम हल्के में लेते हैं। We take God's presence very, very lightly. और उसकी उपस्थिति को हम बहुत ही हल्के सहज रीति से ले लेते हैं। But it is our duty to know
who God is. परंतु ये हमारा काम है कि हम जाने कि परमेश्वर कौन है। See, I want to just break some notions this morning. और कुछ शब्दों को जो है, कुछ चीजों को मैं तोड़कर आपको बताऊंगा। God is not a genie. परमेश्वर जो है वो जीनी नहीं है। He does not grant you 3 wishes. वो जो है आपको 3 इच्छाएं नहीं देता। You don't have to run to him and say, God, I want, I want, I want. और आपको उसकी ओर दौड़कर नहीं कहना कि प्रभु मुझे चाहिए Yes, चाहिए। he does bless you. हाँ, वो आपको आशीष देता है But that is as a result of his will. और वो उसकी इच्छा से आपको आशीष देता है। That has nothing to do with what you do. और जो आप करते हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं है। You know, I just want to tell you one thing, that as I was preparing this, the Lord just brought one thing to my mind. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे इस संदेश की तैयारी में कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे जहन में एक चीज को लेकर आए। That one of the type of people that the devil hates और एक तरह के लोग हैं जिससे शत्रु नफरत करता है, is those who understand how to walk in reverential fear of God. ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि हम परमेश्वर की श्रद्धा में, उसके सम्मान में किस रीति से Because चलें। these are the people that God will always trust with his secrets. क्योंकि ये वो लोग हैं जिस पर परमेश्वर अपने रहस्यों को लेकर भरोसा रखते हैं। Reverence to God is man's way of responding to an all-powerful being. और परमेश्वर का सम्मान करना ये मनुष्य की रीति है कि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसमें वो श्रद्धा रखे। It is our way of response to our Creator. ये हमारा तरीका है जो हमारे रचने वाले की ओर हम रखते हैं। It is our way of responding to his goodness in our life. और ये हमारा तरीका है जो परमेश्वर की भलाई की ओर हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। It is our acknowledgement of the fact that a holy God sent his only son to die for us. और ये हम जानते हैं कि पवित्र परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए मरने को भेजा। It is our acknowledgement of the fact that without him we cannot even enter his presence. और इस सच्चाई को हम जानते हैं कि उसके बिना हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश भी नहीं कर सकते। You know, oftentimes, कई बार, I want you to listen to me very closely. मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से मेरी ओर सुने। Oftentimes, कई बार we all understand that it is the blood of Jesus that takes us into the presence of God. हम समझते हैं कि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लिए जाता How do है। we know this? हम कैसे जानते हैं? Because the book of Hebrews says क्योंकि इब्रानी की किताब में कहा that है he has torn the veil. कि उसने उस पर्दे को फाड़ दिया We है। can now enter into God's presence. अब हम परमेश्वर की हुजूरी में हम प्रवेश कर सकते So we हैं। understand this part, that it is the blood that takes us there. तो इस भाग को हम समझते हैं कि यीशु का लहू जो है वो हमें प्रवेश करने के लिए देता है। But can I tell you that it is only reverence towards God that will keep you there? और परंतु क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि केवल परमेश्वर की ओर जो आपका सम्मान है वही आपको वहाँ पर बनाए रखता है। You can enter as a result of what Jesus has done. और जो यीशु ने किया उसके परिणाम स्वरूप आप उसमें प्रवेश कर सकते But it हैं। is reverence towards God that will keep you in his presence lingering on. और परंतु परमेश्वर की ओर जो आपका सम्मान है वही आपको उस स्थान में हमेशा के लिए बनाए रखता So है। is this a new concept? क्या ये नया तरीका है? Absolutely not. बिल्कुल नहीं। We've seen it in the Old Testament, and I'll just speak a couple of scriptures before getting into the word. और वचन में जाने से पहले कुछ आयतें हम आपको बताएंगे। In the Old Testament, God showed what reverence towards him was to look like. और पुराने नियम में परमेश्वर ने दिखाया कि उसका आदर किस प्रकार से किया So जाता what did है। he do? तो उसने क्या किया? He gave laws. उसने नियम दिए। He gave laws of purity. उसने शुद्धता के नियम He दिए। gave laws of cleansing. उसने पवित्र होने के He नियम gave दिए। laws of food. उसने खाने के नियम He दिए। gave the laws of rest. उसने आराम के नियम दिए। He even gave the law as to how the ark of his covenant had to be carried. और उसने उस प्रकार के नियम भी दिए कि किस रीति से उसके वाचा के संदूक को उठाया जाना है। You know another thing? दूसरी बात क्या है? In Leviticus 19:30, you can check this when you go home. और लव व्यवस्था 19:30 में The Bible also says, honor the Sabbath and show reverence to God. और बाइबल बताती है कि हम शब्बात का सम्मान करें, शब्बात का हम सम्मान करें और परमेश्वर की और उसके आदर श्रद्धा में हम बने God रहें। equated the reverence of the Sabbath and the reverence of his sanctuary in one verse. और परमेश्वर ने शब्बात का जो आराम है और उसकी ओर का जो सम्मान है उस दोनों को एक सम्मान रखा। So God gave us an entire list of do's and don'ts in the Old Testament. और पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी पूरी सूची दी। But then we are not under the old, we are under the new. परंतु हम पुराने नियम में नहीं परंतु हम नए नियम में जी रहे हैं। So does it mean तो क्या इसका अर्थ ये है? Does it mean that there is absolutely nothing in the new covenant? क्या इसका अर्थ ये है कि नए नियम में कुछ भी नहीं है? No, there is.
नहीं, वहाँ पर है। The Bible does not give us a codified list of do's and don'ts. और बाइबल हमें ऐसे जो है पूरे कोड से जो है ऐसी सूची नहीं देते कि क्या करना है क्या नहीं करना But what है। the Bible does is the Bible tells us the way we should live our life. परंतु बाइबल हमें क्या कहती है, हमें बताती है कि किस रीति से हमें जीवन को जीना है। Romans 12:1 calls on us to present our bodies as a living sacrifice to God. रोमियो 12:1 में बाइबल हमें बताती है कि हम अपने जीवन को एक जीवित बलि बोलकर परमेश्वर को समर्पित हो The जाए। apostles talk about how we must come in the presence of God. प्रेरित हमें बताते हैं कि किस रीति से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। We may not be under the old covenant, हम पुराने नियम में नहीं हैं, but the principles do not change. परंतु जो सिद्धांत है वो बदले नहीं। God still is deserving of our reverence towards Him. और परमेश्वर जो है उसके और हमारे आदर के लिए वो योग्य है। A very holy God is still deserving of all the reverence towards Him. और पूरा पवित्र परमेश्वर जो है उसका सम्मान हमें करना है। And this morning I just want to speak on 3 points. और 3 मुद्दों पर आज की सुबह मैं My बताऊंगा। first point this morning, मेरा आज की सुबह का पहला मुद्दा है being reverent towards God और requires you to acknowledge God's presence. परमेश्वर की ओर श्रद्धावान होने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना है। God is omnipresent. और परमेश्वर है जो हर जगह मौजूद है, He's here. वो यहाँ मौजूद है। God is omnipresent. He's here. वो हर जगह मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। God is omnipotent. He can do anything here. और वो परमेश्वर जो वो सब चीजों को पूरा कर सकता है। You know, I'm just led by the Lord to say that there are some people here who are going to receive an answer this morning. और परमेश्वर की ओर से मेरी अगुवाई हो रही है कि यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं जो अपने उत्तर को पाएंगे। There's someone in this place who has come seeking the Lord for some question that they've had about their life. और इस स्थान में कुछ लोग हैं जो अपने जीवन के कई प्रश्नों को खोजते हुए आए हैं। And the Holy Spirit is going to give you the answer that you are looking for. और पवित्र आत्मा उन प्रश्नों का उत्तर आज आपको See, देगा। what happens is we often forget as believers और होता क्या है, विश्वासी होने के नाते हम भूल जाते हैं that we are carriers not only of God's fragrance but also of His presence. और हम परमेश्वर की खुशबू को ही नहीं परंतु उसकी उपस्थिति को भी लिए हुए चलते हैं। I love perfumes. और मुझे परफ्यूम पसंद है। For those of you who know me, you know that. जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं। Some people say that I put on so much perfume that when I walk into a room they can't smell their own perfume. और कई लोग मुझसे कहते हैं कि जब मैं कोई कमरे में जाता हूँ तो मैं इतना परफ्यूम रहता है कि दूसरे परफ्यूम की खुशबू ही नहीं So आती। I love my fragrances. तो मुझे मेरी खुशबू बहुत पसंद है। Like right now, और अभी I'm getting great fragrance. और मुझे अच्छी खुशबू अभी आ रही है। But you know what? परंतु क्या, In the spiritual realm, आत्मिक क्षेत्र में just like how I'm getting my fragrance now, जैसे मुझे मेरी अपनी खुशबू आ रही how है everyone around me knows that I've put on perfume. और मेरे आजू बाजू के हर लोगों को पता है कि मैंने परफ्यूम लगाया है। The Bible says that you are the fragrance of Christ. बाइबल कहती है कि आप मसीह की खुशबू लिए चलते So when हैं। you walk into a place, you carry God's fragrance into that room. और जब किसी स्थान में आप जाते हैं तो उस कमरे में आप परमेश्वर की खुशबू को लिए चलते हैं। In other words, when you walk into a room, people can smell God's presence. और दूसरे शब्दों में कहे तो जब भी आप कमरे में जाते हैं तो वो लोग जो है परमेश्वर की खुशबू को And महसूस it's करते not हैं। only people, it's even powers of darkness that can sense that their time to leave has come. और केवल मनुष्य नहीं परंतु दुष्ट आत्मा जो है वो भी जिसके सूंघ लेती है और वो समझती है कि अब उनके जाने का समय आ गया You है। know, but we forget that we are carriers not only of God's fragrance but also of His presence. और कई बार हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की खुशबू को लिए नहीं परंतु उसकी उपस्थिति को लिए भी चलते हैं। As believers, we tend to forget और विश्वासी होने के नाते हम भूल जाते हैं that we don't need to go out to search where God is. कि हमें बाहर जाकर नहीं ढूंढना है कि कहाँ परमेश्वर है। He's living on the inside of you. वो हमारे अंदर रहता है। The apostles write this और प्रेरित ये लिखते हैं in 2 Corinthians 13 verse 5. दूसरे कोरिन्थियों 13 अध्याय 5वां आयत, It says, now your souls will be strengthened and healed if you hold steadfast to your faith. Haven't you already experienced Jesus Christ Himself living in you? If not, you are deficient. और इस आयत में लिखा है यदि तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहोगे तो तुम्हारा मन बलवंत और चंगे हो जाएंगे। क्या तुमने अनुभव नहीं किया कि यीशु मसीह स्वयं तुम में रहता है? यदि नहीं तो तुम में कमी है। In Galatians 2 verse 20,
गलीतियों 2:20 में कहा है, It says, my old identity has been co-crucified with Christ and no longer lives. और इसमें कहा गया है कि मेरी पुरानी पहचान मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई है और अब मैं और जीवित नहीं। And now the essence of this new life is no longer mine, for the anointed one lives his life through me. We live in union as one. और अब इस नए जीवन का सार मेरा नहीं, क्योंकि अभिषिक्त जन मेरे माध्यम से अपने जीवन जीता है, हम एकता में रहते हैं। My new life is empowered by the faith of the Son of God who loves me so much that he gave himself for me, dispensing his life into mine. मेरा नया जीवन परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में सशक्त होता है, जो मसीह इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Church, have we forgotten what it is to sit in God's presence? कलीसिया, क्या हम भूल गए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना क्या है? Have we forgotten the first time when someone told us about God, the simplicity of sitting in God's presence? क्या हम भूल गए हैं जब किसी ने पहली बार हमें बताया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना क्या होता है? Have we forgotten what it is to sit at the feet of Jesus? क्या हम भूल गए हैं कि यीशु के चरणों में बैठना क्या होता है? How do you feel his presence? आप उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं? What is his presence? उसकी उपस्थिति क्या है? Is his presence a feeling? उसकी उपस्थिति क्या एक एहसास है? Is it an emotion? क्या वो एक भावना है? Is it a tingling sensation when we had a beautiful time of worship? और हमारी बहुत ही सुंदर आराधना का समय हुआ, क्या परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसे गुदगुदी के समान है? Was it that tingling feeling when the song hit the crescendo and everyone was worshiping? और जब वो गीत ने उस छोर को छुआ तो जब सभी लोग जो है आराधना कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसी गुदगुदी जैसी लग रही Was थी? that God's presence? क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति थी? The answer is very simple. और उत्तर बहुत सरल है। Those all point us towards God's presence. और वो सब चीजें जो परमेश्वर की उपस्थिति की ओर दर्शाती हैं, Those things all together factor in the overview of what God's presence is like. और वो सभी चीजें मिलकर हमें दर्शाती हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति किस समान होती है। But परंतु God's presence, listen to me, आप मुझे सुने, परमेश्वर की जो उपस्थिति है is everywhere. वो सब जगह मौजूद है। It's here. वो यहाँ पर है। It's when you're in your bus traveling to work. जब आप अपने काम पे जा रहे हैं अपने बस में, वहाँ पर भी है। It's when you're driving your car, He's there. जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो वो वहाँ पर होता When you're है। having your dinner, He's there. जब आप अपना खाना खाते हैं तो वो वहाँ पर होता When you're है। working, He's there. जब आप काम करते हैं तो वो वहाँ पर होता है। God's presence has never left. परमेश्वर की उपस्थिति आपको कभी नहीं छोड़ती। It is just that you need to acknowledge His presence. और केवल यही है कि आपको जानना है परमेश्वर की उपस्थिति You need to को, be aware that He is now with you. और आपको ये पहचानना है कि वो अब आपके साथ है। It is in our busyness of life that we forget that God has never walked away. हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं हुआ। God is perpetually working. और परमेश्वर जो है वो निरंतर काम करते हैं, And He's working right now. और वो अभी भी काम कर रहे He's हैं। doing a creative thing because that is in the nature of God. और वो रच रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है नई चीजों को रचना। You know what He's doing right now? और वो अब क्या कर रहे हैं? He's changing someone's destiny. और वो किसी के भाग्य को बदल रहे हैं, He's changing someone's tomorrow. और वो किसी के कल को बदल रहे He's हैं, taking away the guilt of sin from someone right now. और वो पाप के शर्म को निकाल रहे हैं। He's doing something new because that is in His nature. वो नई चीजों को कर रहे हैं क्योंकि ये उनका स्वभाव है। Reverence is acknowledging that someone great is in your midst. और सम्मान जो है इसे जानना है कि कोई तो महान जो है वो आपके बीच में उपस्थित है। You know, there's something called protocol. और क्या है प्रोटोकॉल? There's something called protocol. और प्रोटोकॉल मतलब कुछ तो नियमित ऐसे चीजें हैं। So how this works is, और ये कैसे कार्य करता for है? all of you who have worked in a government department आप सभी जिन्होंने सरकारी दफ्तरों में काम किया है, or who understand how things work, या फिर आप जानते हैं कि चीजें कैसी होती or हैं, even if you work in a corporate setup, यदि आप एक कोई कॉर्पोरेट सेटअप में भी काम करते when हैं, someone great comes into your presence, the way you do things begins to change. यदि आपके बीच में कोई महान व्यक्ति आए तो जिस रीति से आप काम करते हैं आप उसे बदल देते हैं। Can I see your hands? How many of you work at a corporate setup? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ कितने लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं? Okay, I'm assuming everyone else has their own business. और सभी लोग बाकी जो है अपना अपना व्यवसाय करते हैं If शायद। not, we release it over you. और यदि नहीं करते तो आपके ऊपर हम इसकी आशीष की घोषणा करते हैं। Okay, so if all of you who are in the corporate setup, और आप सभी लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, when your directors, when your managing directors, when your CEOs come into your presence, जब आपके डायरेक्टर, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके सीईओ आते हैं आपके बीच में, the way you do things change. जिस रीति से आप कार्य करते हैं वो उसमें बदलाव आप करते हैं। The way you
talk changes. जैसे आप बात करते हैं वो बदल The जाता way you है, walk changes. जैसे आप चलते हैं वो बदल जाता The है, way you address someone changes. जैसे आप दूसरों से बात करते हैं वो बदल जाता है, Suddenly you're very respectful. और अचानक से आप बहुत सम्मानजनक हो जाते हैं, Suddenly your please and your thank yous flow even more. और अचानक से आप विनती करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं. What happened? क्या होता है? You acknowledged that someone great is now in your midst. और आप इसे जानते हैं कि आपके बीच में कोई तो महान व्यक्ति है, And yet I submit और फिर भी मैं समर्पण that करता someone हूँ. far greater is right now present in और this जो place. सबसे सर्वशक्तिमान महान है वो हमारे बीच में है. And this person, और ये मनुष्य every time his name is taken, हर बार जब इसका नाम लिया in जाता the है, spirit realm you have knees bowing down left and right. आत्मिक क्षेत्र में दाएं बाएं और हर एक घुटना टिक जाता Because the है, Bible says that at the mention of his name, knees have to bow down. क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु के नाम लेने से हर एक घुटना टिक जाता है. Every time you take his name, there are prison doors that are being flung open. और जब कभी आप उसका नाम लेते हैं तो वो बंदीगृह के दरवाजे जो है वो खुल जाते Every हैं. time you take his name, there is someone who is getting a new destiny because that is what God does. और हर समय जब आप उसका नाम लेते हैं तो कोई तो है जो नए भाग्य को पाता है, क्योंकि यही परमेश्वर का कार्य है. So how do you respond to God? तो आप परमेश्वर को कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? Acknowledge him. उसे आप जाने पहचाने. See, God is never going to force you to acknowledge him. और परमेश्वर कभी भी आपको मजबूर नहीं करेगा उसे जानने में या पहचानने में. Because if he forces you, it goes against his very nature. क्योंकि यदि वो आपको मजबूर करे या जबरदस्ती करे तो ये इसके स्वभाव के विपरीत है. You know, I used to often wonder, और कई बार मैं सोचता when था, I was growing up, I would always say, God, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं कहता था कि प्रभु, if I ever I'm going to fall into sin, I want you to send an angel and push me away. और यदि कभी मैं किसी पाप में पड़ूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने स्वर्गदूत को भेजो और आप मुझे उससे बाहर निकाले या धक्का दे दे. So I used to pray these prayers. तो मैं ये प्रार्थना करता था. Today I realize that that was as a result of spiritual immaturity. और आज मैं ये जानता हूं कि मैं आत्मिक रूप से मैं सयाना नहीं था. God was never going to come and physically push me प्रभु कभी भी आकर मुझे वास्तविक में धक्का नहीं देते, because that goes against his nature. क्योंकि ये उसके स्वभाव के What विपरीत does the है. Bible say? The Bible says that God provides an escape for you even in the middle of your trials and temptations. और बाइबल क्या कहती है कि आपके सताव, आपके विपत्तियों में भी परमेश्वर जो है आपके लिए मार्गों को निकालते So in हैं. other words, he's not left when you're facing your tribulation or your temptation. और दूसरे शब्दों में हम कहें तो परमेश्वर आपके विपत्तियों में आपको नहीं छोड़ता. He's literally standing there saying, there's the door, I want you to run. और वो खड़ा रहता है और कहता है कि देखो वो द्वार है, वहां से तुम्हें भागना He's not है. going to push you into the door. He expects you to do that. वो तुम्हें दरवाजे में धक्का नहीं देगा, वो चाहता है कि तुम स्वयं उस दरवाजे से निकलो. How many of us need to look at those doors when we are with our friends? और हम में से कितने लोग हैं जिन्हें जरूरत है जब हम हमारे मित्रों के साथ होते हैं तो उन दरवाजों को हमें You know, देखना when a है. conversation is wrong, और जब बातचीत जब गलत होती है, how many of us have taken that door and walked? कितने लोग वो दरवाजे को लेकर उससे बाहर निकल जाते You know, हैं. when sin is crouching, और जब पाप जो है वो स्थान ग्रहण करता how many है, of you have used God's escape door to run away? कितने लोगों ने परमेश्वर के उस बचाव के मार्ग को लिया और वहां से निकल गए? Very few. बहुत कम. And then we often blame God. और फिर हम हमेशा परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं. We say, God, हम कहते हैं प्रभु you did not give me enough strength. आपने मुझे सामर्थ्य नहीं दिया, You did not give me enough grace. आपने मुझे अनुग्रह नहीं दिया. But that's absolute lies. परंतु ये झूठ है, Because the Bible says God's grace is sufficient for you. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है. Because this is what God tells Paul. He says, my grace is sufficient for you because my strength is made perfect in your weakness. क्योंकि यही बातें परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी दुर्बलता में मैं ही तेरे लिए सशक्त हूँ. Have we become people who want the miracle but not the miracle worker? क्या आप ऐसे लोग हैं जिन्हें चमत्कार चाहिए परंतु चमत्कार करने वाला नहीं Have we चाहिए? become people who want the blessing but not the blesser? क्या हम वैसे लोग बन गए हैं कि हमें आशीष चाहिए परंतु आशीष देने वाला नहीं Have we चाहिए? become people who want the deliverance without the deliverer? क्या हम ऐसे लोग बन गए हैं कि हमें छुटकारा चाहिए परंतु छुड़ाने वाला नहीं You know, in चाहिए? the Gospels of Matthew, Mark and Luke, मत्ते, मार्क, लूका का जो सुसमाचार है, 3 gospel writers record this. और तीन सुसमाचार कहने वाले ये लिखते हैं. One day Jesus went sailing.
और यीशु जो है एक दिन वो उस नाव में चल रहे थे because he had a mission that day. क्योंकि उस दिन उन्हें सेवा थी करने की And what he had to do was he had to deliver a man who was bound with the spirit of legion. और उन्हें उस एक मनुष्य को छुड़ाना था जिसमें दुष्ट आत्मा की सेना थी So Jesus goes there और यीशु वहां पर जाते हैं and this man gets delivered. और ये मनुष्य जो है उसे छुटकारा मिलता But है I want you to understand who was this man. परंतु मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि ये मनुष्य कौन है The Bible says he lived among the tombs. और बाइबल बताती है कि वो ऐसे कब्रों में रहता था He was so strong that he could even break chains. और वो इतना सामर्थ्यशाली था कि वो जंजीरों को भी तोड़ता था Yet when he saw Jesus, फिर भी जब उसने यीशु को देखा his destiny changed. तो उसका भाग्य बदल गया I want to tell you, every time you see Jesus, your destiny changes. और मैं आपसे कहता हूँ कि हर समय जब आप यीशु को देखते हैं तो आपका भाग्य बदलता है You may have been bound by fetters of iron, but Jesus is the chain breaker. परंतु आप शायद लोखंड के जंजीरों में जकड़े होंगे परंतु यीशु जो है वो जंजीरों को तोड़ने वाला है Lack may have held you down, but Jesus is your provider. कमी घटी आपको दबाए रखती है परंतु यीशु जो है आपका प्रबंध करने वाला है This man gets delivered, ये मनुष्य को छुटकारा and मिलता it's है a great celebration. और वहाँ पर बड़ा उत्सव होता है We know this story. हम इस कहानी को जानते हैं The demons rush into the pigs go and fall off the cliff, and all of them drown. और दुष्ट आत्माएं जो है वो सुअरों में चली जाती है और सुअरें जो है वो खाई में गिर जाती है But look at what happens. अब देखिए क्या होता है The people of that town hear about this miracle और शहर के जो लोग हैं इस चमत्कार के बारे में वो सुनते हैं because the herdsmen told them what happened. क्योंकि जो चरवाहा है उन्होंने उसे बताया था All of them come running. सभी लोग जो है दौड़ कर आते They हैं see the man that was demonized now sitting at the feet of Jesus. और वो देखते हैं उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्मा थी अब वो अच्छा होकर यीशु के चरणों में बैठा है But how do they respond? परंतु किस तरह से वो प्रतिक्रिया करते हैं They ask him to leave. वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ They saw the miracle, उन्होंने चमत्कार देखा but they refused to acknowledge the presence of God. परंतु उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को मानने से इनकार There may किया be times in our life when we have received the miracle but refuse to acknowledge God. हमारे जीवन में ऐसे समय होते हैं कि जब हमने चमत्कार को देखा है परंतु हम परमेश्वर का नकार करते There may हैं have been times in our life when we have experienced the healing but never said thank you to the healer. और हमारे जीवन में ऐसे समय भी आते हैं कि जब हमने चंगाई पाई है परंतु उस चंगाई देने वाले को हम धन्यवाद नहीं देते There may have been times when we have experienced God's hand of provision but never really thanked him for it. और ऐसा समय हमारे जीवन में हो सकता है कि हमने परमेश्वर के प्रबंध करने वाले हाथ को देखा है परंतु कभी उसे हमने धन्यवाद नहीं दिया My prayer is that this church would never become like the town people of that place. और मेरी प्रार्थना है कि ये कलीसिया के लोग जो है उस शहर के लोगों के समान कभी ना बने That this church would learn to recognize that the greatest power in the universe is in their midst. और ये कलीसिया के लोग ये जानेंगे कि इस विश्व के सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो उनके मध्य में है The correct response to God's presence is to fall down in surrendered worship to और him. परमेश्वर की उपस्थिति की और सच्ची प्रतिक्रिया ये है कि आप उसके सम्मान में उसके सामने दंडवत हो जाए My second point, मेरा दूसरा मुद्दा being reverent requires you to always acknowledge the move of the Holy Spirit. और श्रद्धावान होने के लिए आपको हमेशा पवित्र आत्मा के गतिविधियों पर ध्यान देना है I'll tell you a biblical secret. और बाइबल का एक रहस्य मैं आपको बताता हूँ God never works without the Holy Spirit. परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के बिना कभी कार्य नहीं करते God never works without the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के बिना कभी कार्य नहीं करते Look at everything that God does, हर एक चीज को आप देखें जो प्रभु करते and हैं you'll always see the role of the Holy Spirit. और आप हमेशा देखेंगे कि उसमें पवित्र आत्मा के कार्य हैं He's our helper. वो हमारा सहायक करने वाला He's है given to the church as a helper. और वो कलीसिया को दिया गया है मददगार के रूप में Yet he is the most misunderstood member of the Godhead. और फिर भी जो है परमेश्वर की कलीसिया में उसे बहुत ऐसे गलत रीति से लिया जाता है You know, it is very foolish to speak against the work of the Holy और Spirit. ये बहुत ही मूर्खता बात है कि पवित्र आत्मा के कार्य के विरोध में हम It is कहें very foolish to put names to the works of the Holy Spirit. ये मूर्खता की बात है कि पवित्र आत्मा के कार्य को हम नाम दे But yet there are people who say that his work has ended. और फिर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उसका कार्य पूरा हुआ There are those that say that tongues have ceased. और वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो ज़बान है वो बंद हो गई There are है those that say prophecies have stopped. और जैसे भी लोग हैं जो कहते हैं भविष्यवाणी जो है अब रुक गई है There are those that say God healed in the past but he cannot do anything today. और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने भूतकाल में चंगा किया परंतु अब वो नहीं कर There are सकते those that say that the fruit
and the gifts of the Holy Spirit ended with the death of the apostles. और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के फल और वरदान जो है प्रेरितों की मृत्यु के साथ अब वो सब समाप्त हो गए। Church, I want to tell you, those are not doctrines of the Bible. और कलीसिया मैं आपसे कहता हूँ कि ये बाइबल के सिद्धांत या नियम नहीं है। The Holy Spirit is still moving in the earth today. और पवित्र आत्मा अभी भी पृथ्वी पर कार्य कर रहे He's हैं। still doing God's work वो today. अभी भी परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। And if you partner with Him, और यदि आप उसके साथ संगति you will करें, change the world. आप इस दुनिया को बदल देंगे। I want to thank God that this ministry, Saving Grace Ministries, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये कलीसिया सेविंग ग्रेस we कलीसिया believe in the fivefold operation of the church. हम कलीसिया के 5 पत्री सेवा में भरोसा करते हैं। We believe that the fruit and the gifts of the Holy Spirit are still active और today. हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के दान वरदान अभी भी सक्रिय है। Even the Apostle Paul, प्रेरित पौलुस भी in 1 Corinthians 14, पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय 1 Corinthians 14 verse 1. पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय So पहला this is what वचन happens. ये होता है। In 1 Corinthians 13, पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय he में talks about love. वो प्रेम के बारे में बताता है। But in 1 Corinthians 14, और पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय he में says, I earnestly beseech you to to desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. और पौलुस जी कहते हैं कि मैं आपसे विनती करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा के वरदानों को पाओ, खास तौर पे भविष्यवाणी के वरदान को तुम पाओ। Who is he writing to? और वो किसे लिख रहे हैं? He's writing to those in the church. और वो उन्हें लिख रहे हैं जो कलीसिया में मौजूद हैं। He's not writing to pastors. वो पासवानों को नहीं लिख रहे He's हैं, not writing to the other apostles. वो दूसरे प्रेरितों को नहीं लिख रहे He's हैं, not writing to those in leadership. और वो अगुवों को नहीं लिख रहे He's हैं, writing to members of the church at Corinth. और कोरिन्थ की कलीसिया के लोगों को वो ये लिख रहे And हैं। he's telling the church of Corinth that each of you need to desire spiritual gifts. और वो कोरिन्थ के कलीसिया के लोगों से कह रहे हैं कि आप सभी को पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना है। Be very careful when speaking about the Holy Spirit. आप सतर्क रहे जब आप पवित्र आत्मा के बारे में Be बात कर रहे very हैं, careful when speaking about what he does. और पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में कहने के लिए सतर्क रहे। He is very gentle वो बहुत सौम्य है and he gets grieved. और उन्हें शोक होता है, And if he gets grieved, और यदि वो शोकित हो he जाए will take a step back. और वो पीछे हट जाएंगे। Let this church never grieve the Holy Spirit of God. ये कलीसिया कभी भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को Let us शोकित ना always करे। be people who partner with the Spirit of God. और हम हमेशा ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ संगति करें। But who is the Holy Spirit? परंतु पवित्र आत्मा कौन है? Is he your conscience? क्या वो आपकी ज्ञान समझ है? You know, a lot of times people say, और कई बार लोग कहते हैं, I felt my conscience prick me and that's the Holy Spirit. और मेरे समझ ने मुझे बताया और शायद ये पवित्र आत्मा है। Is the Holy Spirit a voice in your head? क्या पवित्र आत्मा आपके मन की वाणी है? The answer is no. उत्तर है नहीं। The Holy Spirit is not your conscience. और पवित्र आत्मा जो है वो आपकी समझ नहीं है। You know why? क्यों? Everyone has a conscience. और सभी के पास समझ है। Whether you believe in the Lord Jesus or not, you have a conscience. यदि आप यीशु में विश्वास रखें या ना रखें, आप में समझ है। So if the Holy Spirit is your conscience, यदि पवित्र आत्मा आपकी समझ है तो that means the world has the Holy Spirit. तो जो इसका अर्थ ये है कि संसार के पास पवित्र आत्मा But है, that is not the truth. परंतु ये सच्चाई नहीं। The Holy Spirit is exclusively given to the church. और पवित्र आत्मा जो है वो केवल कलीसिया को दिया गया Jesus है। said, it is better for me to go so that I can send you a helper. और यीशु कहते हैं कि मेरे लिए जाना उत्तम है ताकि मैं तुम्हारे लिए मददगार को When भेज Jesus सकूं। got lifted up, the Holy Spirit came down. जब यीशु जो है वो उठाए गए तब पवित्र आत्मा जो है हम में आए। The Holy Spirit is only given to those who believe in Jesus. पवित्र आत्मा उन्हें ही दिया जाता है जो यीशु पर भरोसा करते हैं। You know, there are exclusive clubs. और ऐसे बहुत से क्लब्स होते हैं, Exclusive clubs. ऐसे Which means that if you are not a member, you cannot enter inside. और ऐसे क्लब होते हैं जिसके आप सदस्य नहीं हैं तो आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। If you are a member, please walk in. यदि आप मेंबर हैं तो आप आ सकते हैं, If you are a member, you'll get perks. और यदि आप मेंबर हैं तो आपको ऐसे वहां पर चीजें If दी you are a जाएंगी, member, you'll get additional benefits. और आपको आप भी यदि आप मेंबर हैं तो आपको अच्छे फायदे दिए For जाएंगे। those of you who love aviation, और जिस किसी को एविएशन या ऊंचाई पसंद है, you know, there is something called airline programs. और ऐसे कुछ चीज है जो एयरलाइन प्रोग्राम ऐसे So बताया जाता if है। you are a member of that particular airlines, you get additional services. और यदि आप उस एयरलाइन के मेंबर हैं तो आपको जो है खास फायदे दिए You जाते get हैं treated different. और आपको अलग रीति से आपसे बर्ताव किया जाता है। The Holy Spirit is only exclusively given to those who are in Jesus. और पवित्र आत्मा उन्हें ही दिया जाता है जो यीशु मसीह में बने हैं।
don't ever speak about him. आप कभी भी उसके विरोध में ना Don't बोले। ever even sit in a place when someone is speaking about the Holy Spirit. Get up and leave. और आप उन स्थानों में भी ना बैठे जिस स्थानों में लोग जो है पवित्र आत्मा के विरोध में बात कर रहे But then हैं। you'll say, I didn't speak. और फिर आप कहेंगे कि मैंने तो नहीं कहा, But you didn't stop them either. परंतु आपने उन्हें रोका भी नहीं। It is better to walk away rather than grieve the Holy Spirit. और ये अच्छी बात है कि आप वहां से चले जाए पवित्र आत्मा को शोकित किए। The world attributes their good deeds to their conscience. और जो लोग हैं जो अपने अच्छी कार्य को जो है अपनी समझ से वो दर्शाते You know, हैं। people say, my conscience stopped me from doing that. और लोग कहते हैं कि मेरी समझ ने मुझे रोक लिया ये करने से, I felt wrong in my conscience, therefore I didn't do it. और अपनी समझ में मुझे गलत लगा तो मैंने ये चीजें नहीं की। But do you know that the conscience can be polluted? और परंतु क्या आप ये जानते हैं कि आपकी समझ को जो है भ्रष्ट किया जा सकता है? Look at Titus 1:15. तीतुस 1:15 हम देखते It हैं, says, to the pure, all things are pure, और जो शुद्ध है उनके लिए सभी चीजें शुद्ध हैं, but to the corrupt and unbelieving, nothing is pure. परंतु भ्रष्ट और अविश्वासियों के लिए कुछ भी चीज शुद्ध नहीं। Both their mind and their conscience has been corrupted. उनका मन और उनका विवेक दोनों भी भ्रष्ट किया गया है। Your conscience may get corrupted, आपका जो विवेक है वो शायद भ्रष्ट हो सकता but the है, Holy Spirit will keep you away from all form of corruption. परंतु पवित्र आत्मा जो है आपको हर एक भ्रष्ट चीजों से दूर रखेगा। You know, when you walk into God's presence, when you enter God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रवेश करते हैं, you'll sense the moving of the Spirit. आप देखेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर की आत्मा जो है कार्य कर In रही fact, I है। feel right now that there are some of you who sense God speaking to you. और अभी मैं ये जान रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा के समझ को आप जान रहे हैं। And what God does is, God will always use the Holy Spirit to convict you of anything in your life और परमेश्वर that क्या does not bring glory to Jesus. और परमेश्वर क्या करते हैं, वो हमेशा पवित्र आत्मा की सहायता से आपके जीवन से जिस चीजों से उसे महिमा नहीं मिलती वो आपको दर्शाते हैं। Listen to me. आप मुझे सुने। Reverence to the move of God will take you deeper into the ocean of God's presence. और परमेश्वर की आत्मा की और जो सम्मान आप रखते हैं वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई में लेकर जाएगा। Your experience with God is directly linked to your reverence of Him. आपका परमेश्वर के साथ जो अनुभव है वो आपका उसके प्रति सम्मान से जुड़ा हुआ है। A word of warning. एक चेतावनी का शब्द, You cannot live a life that even the world would be ashamed of from Monday to Saturday and then expect why on Sunday the Holy Spirit touches the person to your right और आप and the person to your left, but somehow you are left wanting. और आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते कि सोमवार से शनिवार तक जो है संसार के लोग भी शर्म करें कि कैसा जीवन आप जीते हैं, फिर रविवार को आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आपके दाएं बाएं के लोगों को क्यों स्पर्श कर रहा है। God honors those who seek Him. परमेश्वर उनका सम्मान करते हैं जो उसे खोजते हैं। God honors those who wait in His presence. परमेश्वर उनका सम्मान करते हैं जो उसकी उपस्थिति में उसकी बाट जोते हैं। God honors those who respond to Him. परमेश्वर उनका सम्मान करते हैं जो उन्हें प्रतिक्रिया करते हैं। You know, I want to tell you this. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, Acknowledge Him. उसे आप जाने, Wait in His presence. उसकी उपस्थिति में आप बने रहे, Don't rush out. आप घाई ना करें, Wait. आप रुके रहे, Because God will envelop you with His love. क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम से आपको घेरेगा। And you know what His love does? और उसका प्रेम क्या करता है? His love breaks chains. उसका प्रेम जंजीरों को तोड़ता है। If anyone is dealing with any addiction, यदि किसी को कोई गंदी आदत है, any addiction at all, यदि कोई बुरी आदत है, spend time in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिताएं। Those chains will come crumbling down. वो जो जंजीरें हैं वो टूट कर बिखर जाएंगी। Finally, आखिर में the reverence of God will bring down heaven's fire. और परमेश्वर का जो सम्मान है वो स्वर्गीय अग्नि को नीचे उतारेगी। You know, if you want heaven's fire, यदि आपको स्वर्ग की अग्नि चाहिए you need to know how to host God's presence. तो आपको ये जानना है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे बनाएं। All of us want the fire. हम सभी को अग्नि चाहिए No one wants to pay the price. और किसी को कीमत नहीं चुकानी। The fire is not given to everyone. अग्नि जो है सभी को नहीं Listen दी to है। me. आप मुझे सुने, The fire is not given to everyone. अग्नि जो है वो सभी को नहीं दी जाती The fire is only given to people who rebuild the altar. और अग्नि केवल उन्हें ही दी जाती है जो अपनी वेदी को पुनः स्थापित करते हैं। Elijah was a great prophet.
एलिया जो है वो महान भविष्यवक्ता थे, a very great prophet. एक बहुत महान भविष्यवक्ता। But before the fire came down, परंतु अग्नि उतरने से पहले he had to restore what was broken. उन्हें वो बनाना था जो टूट गया था, He had to restore what had been torn down. जो टूट कर बिखर गया था, उन्हें वो पुनः स्थापित करना था। If you want God's fire, यदि आपको परमेश्वर की अग्नि चाहिए, you need to restore the broken altars of your prayer life. तो आपको अपनी प्रार्थना की वेदी को पुनः स्थापित करना You है। need to restore the broken altars of your family. आपके अपने परिवार की वेदी को पुनः स्थापित You करना need to है। restore what has been broken in your family. जो आपके परिवार में टूट गया है, आपको उसे पुनः स्थापित You करना need to है। restore your relationship back with God. और आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करना है। You cannot be someone who sits with for even more time with a cup of tea than the Bible and expect God's fire. और आप ऐसे लोग नहीं बन सकते कि जो चाय की प्याली के साथ ज्यादा समय बिताए परमेश्वर की अग्नि को आप चाहे। Your tea time will be 15 minutes, but your Bible reading time is 2 minutes. और आपके चाय पीने का समय 15 मिनट है, आपके बाइबल पढ़ने का समय 2 मिनट है। The fire doesn't come down. अग्नि वहां पर नीचे नहीं उतरेगी। The fire is given to those who can be trusted. अग्नि उन्हें ही दी जाती है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। God's secrets are released to those whom God trusts. और परमेश्वर के रहस्य जो है उन्हीं पर जाहिर किए जाते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा करते And हैं। if you want God's fire, और यदि आपको परमेश्वर की अग्नि चाहिए, you need to learn how to reverentially host His presence. तो आपको ये जानना है किस रीति से सम्मान पूर्वक आप उसके उपस्थिति को दर्शाएं। You know, I sense the Lord saying this. और मैं ये महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर कह रहे हैं, Some friendships need to break. कुछ दोस्ती जो है वो टूटनी Listen है। to me. आप मुझे सुने, Some friendships need to break. कुछ दोस्ती है जिन्हें टूटना है, Some things need to change. किन चीजों को बदलना है। Some people need to be removed and unfollowed. और कोई लोगों को आपको जो है पीछे रखना है या उन्हें छोड़ देना है। Some numbers have to be blocked. और किसी के नंबर है उनको आपको ब्लॉक करना है। If you want to be set apart, you have to set yourself apart. यदि आपको ऐसे अलग होकर रहना है तो आपको लोगों से अपने आप को अलग करना है। You know what we do? हम क्या करते हैं? We often mistake God's grace for God's permission. और कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को जो है परमेश्वर की सहमति से हम विपरीत ऐसे अलग मान लेते हैं। Listen to this. आप इसे सुने। We mistake God's grace for God's permission. और हम परमेश्वर के अनुग्रह जो है उसे परमेश्वर की सहमति ऐसे मान लेते हैं। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? It means that just because we have been forgiven in the past, let's do it again. और इसका अर्थ यह है कि हमें भूतकाल में क्षमा मिली है तो हम दोबारा इन चीजों को करें। We mistake God's mercy. हम परमेश्वर की दया को जो है We वैसे mistake God's goodness. हम परमेश्वर की भलाई को गलत रीति से And लेते we say हैं that's fine. और हम कहते हैं कि ठीक है, I can always go running back to God. और मैं फिर से परमेश्वर की ओर दौड़कर जा सकता हूँ। You're right. You can always go running back to आप सही हैं, आप परमेश्वर की ओर दौड़कर जा सकते हैं। But that doesn't talk about a mature son of God. परंतु ये परमेश्वर के सयाने पुत्र के लक्षण नहीं। Mature sons want to do the Father's will. सयाने पुत्र जो है वो पिता की इच्छा को करते हैं। You know, you cannot operate according to your flesh and expect heaven's fire. और आप अपनी देह के अनुसार कार्य करके परमेश्वर के स्वर्ग के अग्नि को आप नहीं मांग The सकते। fire is poured down on people who do God's will. अग्नि उन्हीं पर उतरती है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। What does the fire do? अग्नि क्या करती है? The fire refines. अग्नि जो है वो शुद्ध करती है। The fire removes every dross. और अग्नि जो है वो हर एक गलत चीजों को निकालती है। The fire burns up the chaff. और अग्नि जो है वो भूसे को जला देती है। And the fire sets you ablaze for God. और अग्नि जो है वो आपको परमेश्वर के लिए प्रज्वलित करती है। The book of Hebrews says that our God is a consuming fire. और इब्रानी की किताब में कहा गया है कि हमारा परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली अग्नि है। In the book of Exodus, निर्गमन की किताब में Moses saw, मूसा ने देखा, he saw a burning bush. उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। But when he stepped into that place, परंतु जब उस स्थान में वो आया, he had to take off his very sandals because the place where he stood was holy. उसने अपने चप्पलों को उतारा क्योंकि वो जो स्थान है वो पवित्र स्थान था। In the book of Hebrews, इब्रानी की किताब में the Bible again describes God with the analogy of a fire. और बाइबल जो है हमें परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसे अग्नि के रूप में दर्शाती But है। this time it says that God is a consuming fire, therefore you must worship him. और इस समय वो बताती है कि परमेश्वर जो है वो एक भस्म करने वाली अग्नि है, इसीलिए आपको उसकी आराधना करनी है। Never take
God's presence lightly. परमेश्वर की उपस्थिति को आप हल्के में ना ले। I always believe this. मैं हमेशा इस पर भरोसा करता हूँ। If God would open our eyes in the spirit realm right this moment, यदि इसी क्षण परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में हमारी आंखों को खोल दे तो every time the name of Jesus is taken, हर समय जब यीशु का नाम लिया जाता है we'd be seeing knees bow down. हम देखेंगे कि घुटने टिक रहे हैं, We'd be seeing tongues confessing. हम देखेंगे कि जीभ कबूल कर रही है, Because that is who Jesus is. क्योंकि यही है वो जो यीशु है। But unfortunately what happens is we get so accustomed to God's presence परंतु दुर्भाग्यवश ये है कि हम इतने हल्के में उस चीजों को ले लेते हैं that we forget that God is holy. कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। And you cannot walk into the presence of a holy God with dishonor. और आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आप असम्मान रीति से आप नहीं चल सकते। Yes, you may walk in, आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, but the way you walk out will be exactly the way that you walked in. और उसी रीति से आप जब आप बाहर निकलेंगे तो वैसे ही आप होंगे जैसे आपने अंदर प्रवेश किया था। When you come into God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, come with something called expectation. और आप एक उम्मीद को लेकर आए, Because when you expect Him to do something in your life, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेंगे, He's going to do something new. वो कुछ नई बातों को करेंगे। Let it always be said of this church और हमेशा इस कलीसिया के बारे में कहा जाए that this church honors God's presence. ये कलीसिया जो है परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करती है। Let it always be said of you and your family that your family respects God's और presence. आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में हमेशा ये कहा जाए कि आप परमेश्वर का सम्मान करते Let हैं। it always be said of your household that your household has learned how to be reverential towards God. और ये हमेशा आपके घराने के बारे में कहा जाए कि आपने सीखा है किस रीति से परमेश्वर का सम्मान करें। And as you do this, और जैसे आप इन चीजों को करते I want to हैं, tell you that God is going to take you deeper than you have ever been before. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप जिस रीति में है उसके और गहराई में वो आपको लेकर God is जाएगा। going to do something new in this place. इस स्थान में परमेश्वर नई चीजों को कर रहे And हैं God is going to change your life. और परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहे हैं। Can we all just close our eyes before I end? और समाप्त करने से पहले हम सभी You लोग can be अपनी आंखों को seated बंद करें। wherever you are. जहाँ कहीं आप बैठे हैं, आप बैठे रहे। If there is someone in this place यदि इस स्थान में कोई ऐसा है who wants to get back to God this morning, जो आज की सुबह परमेश्वर की ओर लौटना चाहते हैं, the Holy Spirit says that there's someone in this place पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि इस स्थान में कोई ऐसा है who has walked away. जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। You walked away. आप दूर चले गए हैं। The Lord is calling you back this morning. आज की सुबह परमेश्वर आपको दोबारा बुला रहे हैं। He's calling you back. वो आपको दोबारा बुला रहे हैं। Let every eye be closed. हर एक आंख बंद रहे Let this be between you and God. और ये केवल आपके और परमेश्वर के बीच में होने दो। What's going to happen over the next couple of seconds और कुछ अगले सेकंड में क्या होने वाला है is you're going to feel God's love envelop you in such a way as you have never experienced. और आप जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम आपको ऐसे घेर रहा है जैसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I break the power of shame in Jesus' name. शर्म की शक्ति को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। I break every power of sin हर एक पाप के सामर्थ को हम तोड़ते हैं। and I speak हम घोष- deliverance to your people, Lord. आपके लोगों पर छुटकारे की घोषणा करते हैं। If there is anyone in this place who says that I have walked away from God, यदि स्थान में कोई ऐसा है जो कहे कि मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ, I don't want you to get embarrassed. मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो। If there is someone who says I used to honor God, और यदि कोई ऐसा है जो कहे कि मैं परमेश्वर का सम्मान करता था I was taught this while growing up, और मुझे ये सिखाया गया था जब मैं बढ़ रहा था, but I have stepped away. परंतु मैं दूर चला गया हूँ। Whoever is here, जो कोई भी while यहाँ every eye is closed, I want you to stand up in faith. जैसे हर एक आंख बंद है तो मैं चाहता हूँ कि विश्वास में आप खड़े रहे। I want you to stand up in faith. मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास में खड़े रहे।